Okay. So we were studying about the advanced Java, right? And in the last class, we have seen about the errors, type of errors. Then we have gone through the exceptions, different types of inbuilt exceptions we have seen, and we had seen examples related to every inbuilt exceptions. Today we'll move further and move towards further topics, and we'll see how these exceptions are working and how we can handle them. We'll see the custom exceptions and many other topics. So this was all about second class. We are on third class today, third session. I will just open my Eclipse editor also so that we can see the code. We can run the code and then see what are the practicals output which are coming by running that program. Give me a second, I will share my complete uh, screen. Multiples are there. I will try to share once again. Is the screen visible to you? Anyone? Anyone just confirm? Screen visible to you, the slide? Is this screen visible to you? Kindly confirm, any student? Yes, sir, Yes, visible. sir. Yes, sir. Okay. Thank you. So we were looking for the exception handling and till multiple catch exceptions we had seen in the last class. Today we'll continue with that about the exception. So we had seen the way how to handle the exception. To handle the exception, we use try catch block. So we'll first see this try catch block. If there is any statement inside the try block and it causes an exception, it just throw exception object which is captured by the catch block. The catch block is basically the exception handler. So let's see some points about the try catch block. The try block can have one or more statement that could generate an exception. Please try to understand these points one by one very carefully. See what the first line says is one or more statement can be there inside the try block which could generate an exception. एक ट्राई ब्लॉक के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही स्टेटमेंट हो, वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं. थर्ड थिंग, हो सकता है कि उनमें से उन मल्टीपल स्टेटमेंट में भी वन और मोर जो है ऐसे स्टेटमेंट हो जो आगे जाकर एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. इफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट जनरेट एक्सेप्शन मीन्स ट्राई ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है, अगर उनमें से किसी भी स्टेटमेंट ने एक्सेप्शन जनरेट किया, देन रिमेनिंग कोड इन दैट ब्लॉक मीन्स ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर एट सम line exception occurs, then the remaining line in that try block that will be skipped and execution jump to the try block.
see, if we have multiple statement inside the try block के अंदर हमारे multiple statements हैं, suppose statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, statement 5 and so on. So if at statement 3 exception occurs, then statement 4, 5, 6, 7 won't execute. The control will just jump to the catch block, and whatever we have written inside the catch block, either to roll back the problem or to show the message, custom message, that will be displayed to the user. So you just remember the thing, if at any point of time at any statement exception is generated, a remaining code won't run, won't execute. Next is, inside the catch block also we can have one or more statements. Multiple statement can also be there inside the catch block. We will see in the example. These are very common. These are not, I'm explaining the very fast thing. These are the common things that inside a block, one or more statement can be there. Whether it is try block or whether it is the catch block, multiple statements can be there. At any statement, if exception occurs, other statement won't execute, control jumps to the catch block. Every try block should be followed by either catch block or finally or both. अगर आपने ट्राई ब्लॉक लिखा है अपने कोड में, तो आपको उसके साथ कैच ब्लॉक देना पड़ेगा, या फिर फाइनली दे सकते हैं, या फिर दोनों रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ ट्राई ब्लॉक लिखते हैं, देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. See, we have I have given four example here. See, in the first image, this one, in the first image we have try block, we have finally block, we don't have catch block, so this is okay, no issue. In the second one we have written try block, we have written catch block, and we have written finally. What statement is inside the block? Please don't think about this currently. You just try to think that we have try block, we have finally block, whether we get any compile time error or not. So in the first image, we won't get any compile time error. In the second image, this try, we have catch, and we have finally. No issue, it will work fine. In the third image, we have only try block and only catch block. No issue, it will work. But if we will write just a try block, we will get compile time error. See here the red spot. This red spot is explaining that we have compile time error. So we'll do one thing, we will just check it in the code, in our code. Any example, we just want to check, so we can take any previous program, we'll just check. We will comment out this. See, try to see if we are writing try only. I will just increase the size of the font. See, if we just write try only, what happens? We are getting, see the red spot, we are getting compile time error. What it says? Syntax error. Insert finally to complete block statements. Next, what we can give? If we will write catch, okay, no issue. We have written only try, we got compile time error. We have written catch along with try, no issue. If we will write try catch and finally, okay, if we will write try catch finally, it's okay, no issue. If we write only try finally, that will also work, no compile time error is there, okay. So we had just seen these four image and their practicals. You got, students? So I will just ask,
Malini, Yes, sir. Malini, you just tell me one thing. Why it is giving this red spot? Sir, at the catch Hmm. parenthesis, we are not writing the exception E. That's why. Okay. We have not provided the parameter that should be the exception class and the object. Okay. And if we write only this catch, we won't get on console anything. We have to write e dot print stack trace. What it will do? It will just print the complete exception. Okay. We will see in the coming practical examples. Excuse me, sir. Yes. Sir, does this E signifies over here? Just the object of, we can give anything. One second. We can give any name. It's just an object name. We can give anything. We can give Malini. We can give Vikas. Anything. Oh, It's okay. just the Thank you, sir. object name. Yes, we can give any name like Ankita, Nirupam, anything, any object. But actually, most of the places we generally see E or EX. That's why we write it. So, shall we move to the next slide? The Yes, sir. okay. The catch statement is passed a single parameter. We had just seen the catch statement is passed a single parameter. And what is that parameter? This is the reference to the exception object thrown by the try block. So whatever exception that occurs inside this, it is handled to the exception object, and the catch explains about the exception occurred. If the catch parameter matches the exception, means we have written here generic exception class, okay, the topmost one. But if we have written something like arithmetic exception, suppose, and here in the try block, if arithmetic exception occur, then this will get executed, otherwise the finally will be executed. So after every catch, try to write this generic also, so that if the above exception does not meet with the type of exception occurred in the try block, then the generic one will be executed. मीन्स अगर आपने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन दिया है और अगर जो ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली मैच करेगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, और उसमें जो हमने प्रिंट स्टैक ट्रेस दिया है वो प्रिंट कर देगा एक्सेप्शंस को डिटेल में। लेकिन अगर हम लोगों ने अरिथमेटिक एक्सेप्शन दे रखा है, जेनेरिक एक्सेप्शन नहीं दिया है, और जो एरर आया है वो अरिथमेटिक ना आकर एरर इंडेक्स ऑफ बाउंड आ गया, ठीक है, तो उस केस में अगर जेनेरिक एक्सेप्शन का है कैच तो वहाँ पे आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। सो यू ऑलवेज ट्राई कि आप जितने भी अलग तरह के एक्सेप्शन दे रहे हो, इट्स ओके, यू गिव दैट, बट एट द लास्ट वन try to give generic exception as well. So otherwise the exception is not caught, and the default exception handler will cause the execution of program to terminate. Now you see and tell me what may be the output. What will be the output of this program? Anyone can say. It's your choice. It's Index out of bound exception, sir. no. We have three statements. See, three system dot out dot println. So which one will be printed on console? First one, uh, I will take the cursor. Whether 1 second, 1 second.
देख लिया सबने आउटपुट बहुत जल्दी। चलो कोई नहीं, इसको वहाँ दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, आप बताइए कि ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा या लास्ट वन प्रिंट होगा, कौन सा प्रिंट होना है? चलिए इसे ये कर देते हैं, अब Sir, the बताइए। last one will be Sir, the last The one will last be one. printed. द लास्ट वन। ओके, लेट्स चेक। Oh, You saw this? See why it has not been printed. This program itself is saying a lot of things. Okay. See, Ramesh, यस सर। रमेश, आपकी आवाज़ काफ़ी धीमे है। आप अगर नहीं बताना चाहते हैं कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बुलंद आवाज़ में बताइए, लाइक ए नहीं सर, स्टूडेंट। बोलिए। यस, नाउ परफेक्ट। हाँ, अब बताइए कि यस सर। यहाँ जो है ये डिवाइड बाय जीरो है। मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे इसमें, डिवाइड बाय जीरो है, बट आया ये यस एरे सर। इंडेक्स ऑफ बाउंड, ऐसा क्यों? डिवाइड बाय सर जीरो है क्योंकि तो सर हाँ हाँ हाँ, बताइए। समझ में नहीं आ रहा सर, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स 20 जो दिया ना वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, ठीक है। अदिति, Yes, sir. मैम Sir, आप ये क्योंकि आप Sir, because you do not mention here generic exception. ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कोई जेनरिक एक्सेप्शन नहीं दिया और इस एक्सेप्शन के अंदर ये आया नहीं। ठीक है, इस कैच ब्लॉक के अंदर ये नहीं आया क्योंकि ये अरिथमेटिक नहीं, जो वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन जो आ रहा है वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का आ रहा है। तो जब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अगर हो रहा है तो सबसे पहले ये सर्च करेगा, यहाँ तक जाएगा ही नहीं डिवाइड बाय जीरो पे। डिवाइड बाय जीरो बाद की चीज़ हो गई, पहले इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का मसला आ रहा है यहाँ पे। तो ये सर्च करेगा कि क्या हैंडल हुआ है कुछ। अगर ये हैंडल हुआ होता तब जो अरिथमेटिक, सपोज अगर ये मैं यहाँ पे देता हूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, वन सेकेंड। ठीक है, अभी ये हुआ। अब मुझे बताएंगी अंशुमाली। अंशुमाली, अब बताइए कि लास्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगा या नहीं होगा? Actually, I'm confused, sir. कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपनी कन्फ्यूजन को और दूर कीजिए। जो कन्फ्यूजन हो वो क्लास में पूछा कीजिए। कुलदीप, yes sir. आप बताइए जो हाईलाइटेड है ये प्रिंट होगा कंसोल पे या नहीं होगा? अब नो सर, एक्चुअली जब उसको जब हम लोग सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर को जब हम 20th इंडेक्स को मतलब ये कर रहे हैं डिवाइडेड बाय जीरो, हम्म, तो वो उसको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन मिलेगा जो कि कैच ब्लॉक के अंदर मेंशन किया है, और वो एरर एक्सेप्शन कॉज बाय कैच ब्लॉक प्रिंट कर देगा सर। नहीं, और वो लास्ट, ये तो प्रिंट कर देगा, यहाँ तक ठीक है, बट ये यस सर, प्रिंट होगा कि नहीं? हाँ ये सर होगा, बिकॉज उसके बाद फिर कैच ब्लॉक के नीचे जितना भी स्टेटमेंट्स रहता है सर वो हम्म, ऑटोमेटिक प्रिंट करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिए हुआ। लास्ट टाइम हमने अरिथमेटिक दिया था
एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड नहीं था, तो वो अरिथमेटिक का एक्सेप्शन तो अकर ही नहीं हुआ, तो वो इस कैच ब्लॉक में नहीं आया। जब कैच ब्लॉक में नहीं आया तो ये एक्सेप्शन हैंडल ही नहीं हुआ, और जब एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ तो इसके बाद के जितने भी हैं स्टेटमेंट उन सबको स्किप कर देगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये सीखा कि अगर आपको आपके ट्राई ब्लॉक के आगे का भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि जो भी एक्सेप्शन जो अकर हो सकते हैं, जो राइज हो सकते हैं हमारे ट्राई में, उसके अगेंस्ट हमें कैच देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कैच के साथ यहाँ पे अगर मैं एक्सेप्शन का भी ऑब्जेक्ट दे दूं, अभी अंकिता बताइए कि इसका, ओ सॉरी मैंने रन कर दिया। ठीक, ये समझ में आ गया अब? यस सर। ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये था एक्सेप्शन जो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ तक समझ गए आप? थोड़ा सा एक बार मैं गो थ्रू कर लूँ। हम लोगों ने जो अभी तक देखा वो देखा कि एरर टू टाइप्स, रन टाइम, कंपाइल टाइम। ठीक है, उसके बाद इनबिल्ट एक्सेप्शंस देखे। इनबिल्ट एक्सेप्शंस में आपको सारे वन बाय वन प्रोग्राम करके देखा आप लोगों ने। ठीक है, और उस प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने मल्टीपल कैच ब्लॉक देखा। मल्टीपल कैच ब्लॉक के बाद हम लोगों ने थोड़ा ट्राई ब्लॉक के बारे में और डिस्कशन किया। एंड नेक्स्ट इज थ्रो एंड थ्रोज। ये जो है मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रो एंड द थ्रोज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि बोथ थ्रो एंड थ्रोज they are used in context of exception, means wherever there is a chance of getting exception we use throw and throws. So where we use throw and where we use throws, that we need to understand. Let's first see the throw. Keyword is used to explicitly throw an exception within your code. Okay, within your code. This is a main word that you have to understand. Throw within your code, throws along with the method. ठीक है, अगर आप थ्रो यूज कर रहे हैं तो आप अपने कोड के इनसाइड में हैं, मेथड के अंदर हैं, मेथड के अंदर कोई कोड है, आप वहां थ्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेथड के सिग्नेचर के साथ ऐड कर रहे हैं तो वहां थ्रो नहीं, थ्रोज करेंगे। So you can throw any exception that is a subclass of java.lang.throwable, इंक्लूडिंग बोथ बिल्ट इन एक्सेप्शंस एंड कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है तो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे इसे। ठीक है, सो थ्रो इज बेसिकली यूज्ड विद इन योर कोड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ थ्रो। फर्स्ट वी विल सी द थ्रो वन। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Yes, sir. वैष्णवी, अभी हम लोगों ने थ्रो और थ्रोज का एग्जांपल देखा। थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है, कहाँ यूज करने का डिफरेंस है इसमें? देखिए, Sir, throw is basically used within the code, विद इन द कोड, परफेक्ट। एंड and थ्रोज, and throws is used along with method signature. परफेक्ट, बिल्कुल सही। मेन डिफरेंस आपको यही याद रखना है, थ्रो इज यूज्ड विद इन द कोड, थ्रोज इज यूज्ड अलोंग विथ मेथड सिग्नेचर। और क्या डिफरेंस हो सकता है? आप रुक जाइए, आप नहीं, अब हो गया आपका। आसफिया, राजू, यस सर। अच्छा आसफिया। आसफिया ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर, देखिए आपके सामने स्क्रीन अपीयर हो रहा है, मैंने यहाँ से ये ट्राई कैच हटा दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है इस एरर को दूर करने का? क्या क्या कर सकता हूँ मैं इस एरर को दूर करने के लिए? एक तो ऑब्वियसली जो मैंने हटाया, ट्राई ब्लॉक लगा सकता हूँ। इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ मैं? क्या मैं मेन मेथड के सिग्नेचर में कोई चेंज करके इस एरर को हटा सकता हूँ? क्या मैं मेन मेथड के सिग्नेचर में कुछ
ऐड करके, कुछ ऐड करके सिग्नेचर में मैं बता रहा हूँ, मेथड के सिग्नेचर में क्या ऐड करके मैं इस एरर को दूर कर सकता हूँ? सर थ्रोज। यस, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे थ्रोज लगाता हूँ, ठीक है, तो भी ये एरर हमारा रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब जब मैंने थ्रोज लगा दिया है, तो पहले जो आउटपुट आ रहा था कंसोल पे और अब जो आउटपुट आएगा कंसोल पे, उसमें क्या डिफरेंस होगा? राजू आप बताइए, राजू। हाँ तो पहले जो दिए थे उसमें जो मैसेज प्रिंट कराना हम चाहते वो आएगा, और अभी जो करेंगे तो उसमें जो पहले से प्री डिफाइन है वो प्रिंट आएगा जो कंप्यूटर में बिल्कुल, पहले जो पहले से प्री डिफाइंड जेनेरिक मैसेज है वो अपीयर होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये था आपका थ्रो एंड थ्रोज। अब आते हैं हम लोग फाइनली पे। थ्रो एंड थ्रोज को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है पिछले कोड को, या आप लोग समझ गए? कोई बात नहीं, जब मैं ये वीडियो शेयर करूँगा या फिर इसका कंटेंट शेयर कर दूंगा या लाइव चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग जब देखेंगे इसको एक दो बार फिर से देखिएगा। विल ट्राई कि मैं इसको आज ही आपके पास अवेलेबल करा दूं किसी भी फॉर्म में जो मेरे लिए सफिशिएंट हो पाएगा या जो जल्दी हो पाएगा। ठीक है, आप लोग पूरा का पूरा एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चंस इससे आना ही आना है मॉक इंटरव्यू में जो इस बार है, और हम लोगों ने इस बार बेस्ट प्रैक्टिस किया है। सो विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइनली। ये फाइनली वही है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ट्राई, ट्राई के बाद कैच और कैच के बाद फाइनली। आई एम टेलिंग यू दिस इज द टॉपिक। ये फाइनली ऐसा है जिसमें इंटरव्यूअर आपको मैक्सिमम घुमाने की कोशिश करेगा कि फाइनली कब एग्जीक्यूट होगा, फाइनली कब एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसा कौन सा केस हो सकता है जहां मेरा फाइनली एग्जीक्यूट हो ही नहीं? क्यों? क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर एक्सेप्शन हो तब भी फाइनली अकर होगा फाइनली का कोड। अगर एक्सेप्शन नहीं आया तब भी फाइनली का कोड अकर होगा। अगर आपने कैच ब्लॉक दिया है तब भी फाइनली का कोड अकर होगा। अगर आपने कैच ब्लॉक नहीं दिया है तब भी फाइनली का कोड अकर होगा। तो आखिर ऐसा कौन सा केस है जब फाइनली नहीं होगा? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपका आप लोगों का होमवर्क रहा। ठीक है, कि कब फाइनली अकर नहीं होगा। खैर, फाइनली जो है, टू एग्जीक्यूट कोड नो मैटर द एक्सेप्शन अकर्स और नो। आपके कोड में एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक्सेप्शन नहीं आया तब भी एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन आया और कैच ब्लॉक में कंट्रोलर गया, कैच ब्लॉक ने उसको हैंडल किया, उसके बाद भी यानी कैच के इमीडिएट बाद जो है वो फाइनली एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका एक्सेप्शन आया और कैच ब्लॉक उसको हैंडल नहीं कर पाया, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले केस देखा भी था कि एक्सेप्शन आने के बावजूद हम लोगों का जो टाइप ऑफ एक्सेप्शन है वो कैच में जो पैरामीटर हमने दिया था वो मैच नहीं कर रहा था, तो कैच एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हमारा एक्सेप्शन आया और कैच उसको हैंडल नहीं कर पाया, उसके बाद भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा। सो आखिर हमें फाइनली के ब्लॉक की जरूरत पड़ी क्यों? तो ये इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आपका कोड रन हो या ना हो, कई बार ऐसा होता है कि एक्सेप्ट मीन्स irrespective of the code that is running inside the try block, we need some operations to perform। जैसे अगर मैंने कोई फाइल ओपन कर रखी है, उसको मैं रीड करने का काम कर रहा हूँ, या मैंने कोई डेटाबेस कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर रखा है, मैं उस डेटाबेस कनेक्शंस को क्रिएट करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अगर मेरा एक्सेप्शन आए या ना आए, वो डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों है ये भी अभी मैं बताता हूँ। तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो, एक्सेप्शन आए ना आए, फाइनली ब्लॉक के अंदर मैं अपने कनेक्शंस को क्लोज करने का काम करूँगा। ठीक है, तो 1 सेकंड। तो फाइनली के बारे में जो बात कर रहे थे हम लोग, वो ये कि हर एक केस में एग्जीक्यूट होगा, और ये यूज होता है फॉर सम ऑपरेशंस विच इज रिक्वायर्ड whether our code execute or does not execute। ठीक है,
ये है मेरा सपोज एक एग्जाम्पल, इसे समझने की कोशिश करते हैं एडिटर में। ठीक है, अभी देखिएगा, इसको समझिए। इसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई कोड नहीं लिखा है जिससे एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, इसके चांसेस अभी नहीं है। ठीक है, मैं सिंपली इसको रन कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी क्या हुआ, मेरा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, इसलिए ये कैच ब्लॉक के अंदर नहीं गया। ठीक है, कैच ब्लॉक के अंदर नहीं गया है, और कैच ब्लॉक के अंदर नहीं जाने के बाद, चूंकि मैंने कहा कि मेरा एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, अब कोशिश करते हैं कि ये कैच ब्लॉक के अंदर जाए। ठीक है, सो व्हाट विल डू, we have integer array of numbers where we have suppose 1 comma 2 comma 3, we have 3 elements, and what we are trying to do is to get numbers at 5th point। ठीक है, सो इस केस में अभी देखिए क्या हुआ, मैंने एक इंटीजर एरे लिया, मैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके थ्रू एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा ट्राई ब्लॉक में पहले यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, मेरा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद चूंकि ये जेनेरिक एक्सेप्शन है, इसलिए कैच ब्लॉक के अंदर आएगा। कैच ब्लॉक के अंदर आने के बाद ये फाइनली में भी जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, पहला केस एक्सेप्शन आए तब भी फाइनली के अंदर जाएगा, एक्सेप्शन ना आए तब भी फाइनली के अंदर। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कैच ब्लॉक के अंदर आया, क्यों, क्योंकि अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, और उसके बाद फाइनली भी एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरा अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड यहाँ है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मेरा एक्सेप्शन तो जनरेट हो, लेकिन मेरा एक्सेप्शन काउंट ना हो, एक्सेप्शन कैच ब्लॉक में ना जाए एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सेप्शन जो मेरा आ रहा है मैं उसे चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ आ रहा है इंडेक्स ऑफ बाउंड, और यहाँ मैंने ले लिया अरिथमेटिक। ठीक है, एक्सेप्शन आया तो ज़रूर, बट मैंने ये ट्राई किया है कि वो कैच ब्लॉक के अंदर ना जाए, यानी इससे मैच ही ना करे, ये इसको बाईपास कर दे। सो अब हम लोग रन करने की कोशिश करते हैं इसे। देखिए अभी क्या हुआ, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, और लास्ट में अरिथमेटिक इसको नहीं मिला है। ठीक है, अरिथमेटिक इसको नहीं मिला है, तो इसने क्या किया कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, और इसका जो जेनेरिक एक्सेप्शन था, इसने एक्सेप्शन जनरेट हुआ, वो जेनेरिक को पास ओवर कर दिया, जो इसका डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर था। ठीक है, तो उसे पास किया, वो उसने आपका ये मैसेज प्रिंट कर दिया, लेकिन आपके कैच ब्लॉक के अंदर नहीं गया। कैच एक्सेप्शन आया, कैच ब्लॉक के अंदर नहीं गया, फिर भी मेरा फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, सो कंसेप्ट ये है, बेसिकली फाइनली के कहने का मतलब ये है कि आप मुझे यूज कीजिए उस केसेस में जहाँ पे आपको स्ट्रीम रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड, डेटाबेस रिलेटेड जो कनेक्शंस आपके हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे जिनको इस कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, सो द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वो अगर परफॉर्म करना हो आपको, तो उसके लिए आप फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, फाइनली में किसी को कोई कंफ्यूजन? वैष्णवी? Yes, sir. वैष्णवी, देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ट्राई, कैच, फाइनली। ठीक है मैम, ये हम लोगों ने देखा अभी। तो Yes. अगर मेरा एक्सेप्शन Yes, ट्राई sir. ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ, तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या Yes, नहीं? sir.
सर होगा। होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, वेरी गुड। अगर सर कैच ब्लॉक के अंदर नहीं गया एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद भी, देन फाइनली एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा, सारे होगा, केसेस में होगा। सारे केसेस में होगा। ऐसा कौन सा केस होगा जहां फाइनली यस एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आपको पता करके आना है आप लोगों को अगले दिन, ठीक है? ओके सर। हाँ, एक केस है कोई जहां पर फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपको पता करना है। इट्स योर होमवर्क। प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। प्रोग्राम अगर एग्जिट कर जाए एबनॉर्मली। हम्म। ठीक है, और कोई केस? सर या तो एग्जिट मेथड यूज करेंगे। कौन से क्लास का एग्जिट मेथड यूज करेंगे? सर एग्जिट मेथड। अच्छा, ठीक है, इसके अलावे? या तो सर सिस्टम फेलियर हो जाए और ठीक है, गुड। लूपिंग्स का कुछ फर्क पड़ेगा अगर लूप में एक्सेप्शन जनरेट हो? ट्राई कीजिएगा। सभी टाइप का एक्सेप्शन को फाइनली ऐड। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग यहाँ ये कह रहे थे कि देखिए, अगर आपका कोई भी प्रोग्राम कोड हो, अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ हो या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तब तो फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही, अगर हुआ है तो एक्सेप्शन हैंडल हो सकता है, अगर एक्सेप्शन हैंडल हुआ है तब भी फाइनली आएगा, और एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ है तब भी फाइनली आएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज कस्टम एक्सेप्शंस। सो एक लास्ट टॉपिक यही बचा हुआ है, कस्टम एक्सेप्शन। कंप्लीट कर लें इसको? नहीं, एक चेंड एक्सेप्शन भी है, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या करना है बताइए? नेक्स्ट आपको इस पे आगे कंटिन्यू करूं या फिर बूटस्ट्रैप के क्लास पे कंटिन्यू करें? सब बूटस्ट्रैप। अच्छा, ठीक है, तो चलिए आफ्टर